was here that Mohandas Karamchand Gandhi was born on the morning of October 2nd, 1869. Celebrating in Delhi on the 15th of August 1947 independence. About the same time, Gandhiji was walking alone into those areas of Noakhali which had known violence. The violence that could not be controlled by the police or even the army was quelled by Mahatma Gandhi by sheer moral force. He decided to fast unto death if the riot was not stopped. Imagine, leading 100 people would be so tough. But this great personality, Mahatma Gandhi, he led the whole nation. And even 60 years after his death, which is now, people still remember him, and every day his stature keeps on increasing. The simple truth that the ends will never justify the means is something that is as true today as it was then. Mahatma Gandhi believed in the power of love, not in the love of power. Non-violent is a more stronger and powerful person than a person who is violent. Gandhiji successfully demonstrated again and again that truth and non-violence are powerful political tools which can win political battles. His salt satyagraha was one such example. He encouraged his followers to defy the British law and make salt on their own without paying tax, just simple civil. If England does not grant your demands, what course of action will you follow then? Of course, civil disobedience and all other phases of satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian state? Oh, yes. Absolute prohibition? Absolute. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. Do you expect England this time will give India full self-government? That also is more than I can say. But you are hopeful. I am an optimist. You are an optimist. If you go to the second round table conference
Will you go attired in native Indian dress, or will you prefer European dress? I shall certainly not be found in European dress. And if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Yes. And if the King of England invited you to dinner at Buckingham Palace, you would go in your customary Indian dress? In any other dress, I should be most discourteous to him, because I should be artificial. If England does not grant your demand, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, Lahore, all these are big cities, and therefore, having come under the influence of the West, having been made also, Delhi perhaps accepted, having been, but not New Delhi, having been made also by the English. I then thought of a little essay, I suppose I should call it, which was in French, and it was translated for me by an Anglo-French friend. And he was a philosopher. He was also an unselfish man. And he said he befriended me without my having known him, because he always sided with the minority. And I was, that is my countrymen, in a hopeless minority. Not only hopeless minority, but a despised minority. If the Europeans of South Africa will forgive me for saying so. We were all coolies. I was an insignificant coolie lawyer. At that time, we had no coolie doctors, we had no coolie lawyers. I was the first in the field. Nevertheless, a coolie. You know perhaps what is meant by the word coolie. But this friend, his name was Kaur. His mother was a French woman. His father was an Englishman. And he said, I want to translate for you. उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम अपने क्षणिक पागलपन को भुला देंगे उस दिन हम उनकी कल्पना का स्वर्ग इस देश में स्थापित कर सकेंगे और उनका हृदय खुशी से नाच उठेगा। कवि ने कहा है, और मैंने तो कहीं यहाँ पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत कोई बाहर नहीं जा है, वो तो एक बगीचा के लिए कहा है। वो तो उस्ताद लेते हैं ना देखने वाले, तो वो तो लिखा है तो वो उर्दू में।
लेकिन मैंने वो पढ़ा, वो भी बहुत वर्षों के पहले जब मैं छोटा था तब की बात है, लेकिन मैंने वो याद रखा कि क्या खूबसूरत चीज़ है, उसको मैं जन्नत नहीं मानता। जन्नत ऐसे आता नहीं है उस चीज़ से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे शरीफ मुसलमान बन जाए, शरीफ हिंदू बने, शरीफ सिख बने, सब के सब भाई भाई बन जाए, तब तो मैं कहूँगा कि वही शेर जो है वो शेर सब दरवाजे पर लगाया जाए, तो पीछे वहीं नहीं लगेगा, यहाँ भी लगेगा। लेकिन यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए, दिल साफ हो जाए, दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा, वो तो नहीं है, उसमें से तो पाकिस्तान वो तो दोज़ख हो जाता है। लेकिन अगर वो बदलता है और शक्ल बदले तो वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो, यहाँ शैतान नहीं देता है, खुदा बिराजता है। ऐसा कर ले तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है, जन्नत तो यहाँ है। अरे लोगों आइए, जन्नत में रहना है, जन्नत में देखना है तो इस दरवाजा में प्रवेश करो। वैसे ही पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है, ऐसे ही हम हैं। पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो हैं, रह जाए, उससे रहा तो क्या, न रहा तो क्या, हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना। दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी, अलग अलग रहे, लेकिन दिल एक मिल गया हमारा, तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे, उससे मुझको क्या आपको क्या बनेगा। मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान के देहात हैं, तो उस 60,000 देहात से वो हुकूमत बनी है, मानो उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है, मुझको बड़ा अच्छा है। उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा, सरल होगा, और तब तक से वो देहातों का काम तो ये बहने पड़ी है, उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से। ऐसी वो खूबसूरत चीज़ है, तो मुझको तो कहते के लिए भी घोंस में पी लेता है। और कोई तो कहे कि तो किसा बेवकूफ़ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज़ का कि वो आशा रखता है, लेकिन मैं क्या करूं, बना हूं इसे। और वो बचपन से छोटा था जब मुझको बता भी नहीं था, बचता नहीं था। ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ, आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ। मैं अखबारों को भी पढ़ना जानता ही नहीं था, पढ़ता ही था। अंग्रेजी मुझको कहाँ इतना आता था, अंग्रेजी बड़ी मुसीबत से थोड़ा पढ़ता था, और ऐसा गुजराती भद्दा जान लेता था। वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सकेगा, उसमें लिखा है क्या, कैसे पढ़ेगा, ऐसा अनजान आदमी। तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में, राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहें, और एक बनकर रहें तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते। ये मेरा ख्वाब। तो अगर लोग मुझको सुनाते हैं, सब जगह से ताल लेते हैं, तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि शायद वो ख्वाब, स्वराज तो आया, वो तो निकम्मा है, उसको मैं स्वराज मानता भी नहीं, लेकिन इसी जन्म में जो उस वक्त एक जवानी है और जवानी भी शुरू होती थी, उसमें ये ख्वाब मैंने देखा, और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा, और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा। अच्छा, हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया, हिंदू मुसलमान कोई आपस में लड़ते भिड़ते नहीं है, और इस तरह से रहते हैं। हाँ, आप लोग सब मदद करें, और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने। मेरी आह क्या सुनना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है कि बात तो सच्ची, वो कहता है बुरा मूर्ख है, उससे क्या हुआ, तो उसकी बात है, ऐसा करो, मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने, तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। एक ऐसे कोई देखेगा ही नहीं कि वो मुसलमान है कि पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा, और आप नाचेंगे, नचावेगा क्या, वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा पे डालेगा
और ऐसी दुनिया ना बन रही है कि जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता है। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं, एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। अरे लेकिन ये पहाड़ जैसा पठान है, सिख है, उससे नहीं डरते हैं, मैं तो डर जाता हूँ। तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ। लड़के लड़कियाँ अगर डरते हैं ईश्वर से ही दूसरे को तो कह सकते हैं। ऐसा मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।